Welcome to Precision Prep. In today's video, we are going to cover our further questions from T.S. Garewal, question number 8 onwards. I hope हमने previous video में जो किया था वो सबको clear होगा. अगर please किसी को clear नहीं तो वो comment section में comment कर सकता है. For the further questions, let's get started. Question number 8. Fragrances Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 shares of 10 each. What we have to do in the question is we have to make the balance sheet of the company showing share capital. Shareholders fund के अंदर share capital show करेंगे. For this we have to make a notes to account first. 50,000 equity shares हैं हमारे for authorized share capital. Okay, for authorized capital, what we have to write down? Notes to account बनाएंगे, particulars amount authorized share capital. Authorized share capital के लिए 50,000 equity shares at the rate of 10 each. So authorized share capital will amount it to 5 lakh. Right? And this is 2 with the double underline 5 lakh total. Issued share capital कितना है? For the issued share capital, we have 20,000 equity shares divided into public for subscription. Again, 20,000 shares आपका किसमें जाएगा? Issued share capital के अंदर. So for the issued share capital, it will be 20,000 equity shares at the rate of 10 each. हमारा issued share capital कितना हो गया आपका? 2 lakh rupees. This is the issued share capital. Again, we have to close it with the double underline. Okay, subscribed capital में क्या कह रहा है? For the subscribed capital, he says, all the shareholders paid the amount and the calls were made, received, except the first and the final call of rupees 2 per share on 500 shares. तो 2 रुपए के ऐसे शेयर होल्डर्स हैं, 500 शेयर ऐसे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने 2 रुपए का फाइनल कॉल आपका जो है पे नहीं पे किया. सो और 500 शेयर होल्डर्स क्या होगा? So this 500 equity shares at the rate of 10 each. Inner column में कितना होगा? 5,000. लेस करेंगे आपका कॉल्स इन एरियस 500 इंटू 2 बिकॉज 2 रुपए का कॉल नॉट पेड है. 500 इंटू 2 दैट विल बी 1,000 रुपीज. सो 4,000 होगा आपका शेयर्स नॉट फुली पेड बिकॉज उन्होंने पे नहीं किया. और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं हमारे 19,500 into 10 each fully called up and paid up. So क्या हो जाएगा? 1,95,000. So total amount will be 1,99,000 in the notes to accounts. Okay, so balance sheet में कैसे fill करेंगे? For the balance sheet purpose, 1,99,000 is the total amount we got. So equity and liability, shareholders fund, share capital is 1,99,000. And here you can add a column of note number 1 or 2, whatever the note we are making. Here it will be written down as equities and liabilities. Okay, let's move on to the next question now. Question number 9. Okay, question number 9. Red Roses Limited was registered with a capital of 25 lakh divided into 25,000 shares of 100 each. Equity shares है हमारे 25,000 के. It issued 15,000 equity shares to authorized public for subscription. So आपका authorized capital में कितना जाना चाहिए? For authorized capital it will be 25,000 equity shares at the rate of 100 each. So it will be amounted to your 25 lakhs. So 25 lakh will go to authorized capital with the double underlined total because इसका total consider नहीं होता है. Second, आपके पास issued capital कितना है? Issued capital is 15,000 equity shares at the rate of 100 each. So issued capital is amounted to your 15 lakh. Again, this total comes with the double line because इसका total हम further consider नहीं करते हैं. Okay. Now next, subscribed capital जब आप करोगे. अब subscribed capital we have to check what is subscribed fully paid and what is not fully paid. What he says,
The shares were subscribed and calls were made and received except allotment of rupees 40 on 100 shares held by Parul. Okay, Parul ने 100 shares हैं पारुल के पास जिसने 40 रुपीस की अलॉटमेंट नहीं दी, तो 100 शेयर्स हो गए आपके, एक तो फुली पेड से निकल गए। आउट ऑफ 15,000 शेयर्स जो थे, 15,000 में से पारुल के 100 शेयर्स तो फुली पेड में नहीं आएंगे, माइनस। And first and final call of 20 on 500 shares including the shares by Parul। ये जो 500 शेयर्स हैं इसमें 100 शेयर्स ऑलरेडी पारुल के क्या है, इंक्लूडेड है। तो यानी 400 शेयर्स हो गए पारुल को अगर एक्सक्लूड करें। सो टोटल जो आपका फुली पेड में शेयर्स रह रहे हैं वो है 14,500। तो पहले फुली पेड वाला कर लेते हैं। 14,500 equity shares at the rate of 100 each, and we'll write down fully called up and paid up. So scoring the mark, we have to write down full for fully called up and paid up. 14 lakh 50,000 is the amount. Now, what will be go to in the not fully paid up? Not fully paid up के total shares कितने हैं आप? 500, be careful while doing this, 500 equity shares at the rate of 100 each. So अभी तक कितना कॉल्ड अप बनता है? कॉल्ड अप तो पूरा ही है, ऐसा नहीं कि उसने कॉल्ड अप नहीं किया। कॉल्ड अप आपका कंप्लीट अमाउंट है। So कितना अमाउंट कॉल्ड अप में जाएगा? 50,000 इंटू 500 इंटू 100, दैट इज 50,000। लेस करेंगे आपके कॉल्स इन एरियर्स जो हैं। कॉल्स इन एरियर्स कितने अमाउंट पे हैं आपके? कॉल्स इन एरियर्स आर ऑन, पहले तो अलॉटमेंट नहीं पे किया, अलॉटमेंट पे ना पे करने वाले 100 शेयर्स हैं इंटू 40। सो 4,000 के आपके क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे हो गए। फर्स्ट एंड फाइनल ना पे करने वाले कितने शेयर होल्डर्स हैं आपके? अगेन लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, 500 शेयर जिसमें 100 ऊपर वाले ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मल्टीप्लाई बाय 20। सो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया आपका? 500 इंटू 20। सो दिस विल बी 10,000 आपके क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर्स हो गए। सो टोटल कॉल्स इन एरियर्स आफ्टर रिमेनिंग द अमाउंट, कितना अमाउंट जो है उसने रिसीव किया? द अमाउंट रिसीव इज 50,000 माइनस 14,000 इज 36,000। So the total amount of the share capital that must go to your balance sheet is 14 lakh 86,000 with the double underline total, and this will go to your balance sheet shareholders fund share capital 14 lakh 86,000 under equity share capital. Okay, the next question we are starting with question number 10. East India Hotels was registered with the authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh 50,000 equity shares of 10 each. So we have an authorized capital. What we have to do? We have to prepare the balance sheet of the company showing the share capital. It issued 1 lakh 50,000 equity shares to public for subscription. All the shares were subscribed and the calls were made and received. First and final call of 3 was not made. तो कॉल ही मेन नहीं की, कॉल मेन नहीं करी तो मतलब आपका सब्सक्राइब फुली पेड तो हो नहीं सकता, एवरीथिंग विल गो इनटू नॉट फुली पेड अप। परेश के पास कितने शेयर्स थे? 5,000 शेयर्स थे। ही पेड द कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। सो उसने कॉल मनी जो है अलॉटमेंट के पास पे कर दिया। सो यहाँ पे परेश सिर्फ एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसका फुली कॉल्ड अप है, लेकिन आपका जो कॉल मनी है 3 रुपीज का, अभी तक कॉल तो हुआ ही नहीं है, तो फुली कॉल्ड अप में तो आप नहीं लिख सकते। जो कॉल्स इन एडवांस उसने पे किया है, इसका सबहेड क्या होता है? दिस मस्ट गो टू योर अदर करंट लायबिलिटीज एज कॉल्स इन एडवांस। लेकिन वो तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट इज एन आइटम ऑफ अदर करंट लायबिलिटी, और हमें बैलेंस शीट में सिर्फ क्या मेंटेन करना है? शेयर कैपिटल। सो कॉल्स इन एडवांस का टेंशन हमें नहीं लेना है, हम सिर्फ अपना करेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड योर इशूड शेयर कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल से शुरू करते हैं आपका 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, equity shares at the rate of 10 each. This will come out to your 25 lakhs with the double line total. Then we'll write down the preference shares, sorry, the issued shares 1,50,000 इक्विटी शेयर मेंशन है, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each coming out to be 15 lakhs
सो अगेन विद द डबल अंडरलाइन टोटल हम क्या करेंगे, पहले इसे क्लोज कर देंगे. नाउ कमिंग टू द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम यहाँ फुली पेड नहीं लिखेंगे, ओनली विल बी सब्सक्राइब्ड, नॉट फुली पेड अप, बिकॉज कॉल्ड अप पूरा नहीं है. तो जब कॉल्ड अप पूरा नहीं होता आपका अमाउंट नॉट फुली पेड अप में ही जाता है. सो नॉट फुली पेड अप में वी हैव ऑल कैटेगरी जितने इशू किया था, बिकॉज अंडर सब्सक्रिप्शन तो नहीं है. सो वी हैव 1,50,000 shares, equity shares at the rate of 10 each, comma, कितना called up है? He said first and final call of rupees 3 was not made. So we'll write down rupees 7 called up and paid up. Calls in advance consider नहीं करना है. So 1,50,000 into 7 rupees, 10,50,000 shares closing with the double underline और बैलेंस शीट टोटल में आपका बस इतना ही जाएगा, क्योंकि 3 रुपीज की कॉल हुई नहीं. परेश ने एक्स्ट्रा पे कर दिया 5,000 है, लेकिन वो कहाँ जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस के अंदर, वो हमें नहीं बनाना. हाँ, अगर आपको कॉल्स इन एडवांस शो करना है, सो कहाँ शो करेंगे, इन दैट पर्टिकुलर केस आप अपना मेंटेन करोगे वर्किंग नोट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज, और उसके अंदर ये सब हेड हो गया आपका अदर करंट लाइबिलिटीज. उसके अंदर आपका आइटम जाएगा कॉल्स इन एडवांस अमाउंटेड टू 5,000 शेयर्स हैं आपके परेश के, और उसने 3 रुपीज जो है आपका एक्स्ट्रा पे किया है. 5,000 इंटू 3 विच इज अमाउंटेड टू 15,000 शेयर्स. तो ये कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, बट इस क्वेश्चन में आपको नहीं बोला, सो वी डोंट हैव टू नीड टू मेक दिस अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 11. Amit Limited was registered with a capital of 5 lakh shares of 10 each. That means capital हो गया आपका 50 lakhs. 20,000 इशू किए हैं at a premium of 2 per share. Securities premium. Securities premium कहाँ जाता है? शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर. Payable at 2 per share on allotment, 10 per share on allotment, 2 per share on application, 10 per share allotment, and you have 2 per share on first call made 3 months later. ओके, 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम है आपका 2 रुपए का, जो कैसे पेबल है आपके, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो दैट मीन्स अलॉटमेंट कैसे होगा, 8 + 2. All the money payable on application and allotment was duly received, but the first call was made. Okay, there are some shareholders जिन्होंने पे नहीं किया है. Some are calls in advance, 400 300 शेयर होल्डर्स, और अनदर जो है 1,000 शेयर होल्डर्स है जिन्होंने पे नहीं किया है. यहाँ पे ना एक गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर. जैसे आपका एप्लीकेशन है प्रीमियम 2 और पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन. अगर हम एप्लीकेशन करते हैं आपका 2 रुपीज, अलॉटमेंट वो कह रहा है कि 10 है विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 8 + 2 होगा. तो यहीं पे हमारा क्या है ना, 12 रुपीज कंप्लीट हो जाता है. अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल मेड है, दैट मीन्स जो अलॉटमेंट का अमाउंट है ये मिस्टेक एंड आई हैव चेक, ये जो अलॉटमेंट है ये आपका 5 रुपीज है. हम इसको 10 नहीं 5 रुपीज करके करेंगे. हमारा करेक्ट कैलकुलेशन क्या आएगा आपका, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 8 + 2, बिकॉज 2 रुपए का क्या है उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम है. सो इट विल बी 3 + 2 5 रुपीज. तो 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 का आपका फाइनल कॉल हो गया. फर्स्ट कॉल है नॉट फाइनल कॉल. सो 2 + 3 5, 5 + 2 7. तो सेकेंड कॉल भी आपकी 3 रुपीज की लेफ्ट है अभी. All the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance. अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गया और जब फर्स्ट कॉल आया तो वन शेयर होल्डर ने पूरा बैलेंस पे कर दिया अपनी होल्डिंग्स 300 शेयर्स का. दैट मीन सेकंड कॉल 3 रुपए की उसने फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दी, और अनदर शेयर होल्डर है 1,000 का जिसने फर्स्ट कॉल देने से मना ही कर दिया. सो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सेकंड कॉल किया या नहीं किया. सो वील अज्यूम कि सेकंड कॉल नहीं हुआ है. जब तक नहीं बताया तब तक अज्यूम करेंगे कि सेकंड कॉल मेड नहीं किया. We have to do the journal entries to record the above transactions and how they will show up in the company's balance sheet. तो पहले बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर हमारा जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं. अलॉटमेंट ध्यान रखेंगे 3 + 2 का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, आपका नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट में आपका क्या है,
with the authorized capital of 5 lakh equity shares at the rate of 10 each. तो ये कितना हो गया आपका 50 lakhs आपका authorized capital हो गया. And we have issued 20,000 such shares at a premium of issued capital कितना हो गया 20,000 shares at the rate of 10 each. 5 लाख में से सिर्फ यहाँ पे एक चीज है, विद कैपिटल ऑफ 5 लाख है, सॉरी, सो अगर कैपिटल आपका 5 लाख है, सो दैट सिंपली मींस कि हमारे जो शेयर्स होंगे इशूड ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर वो कितने शेयर्स होंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. तो यहाँ पे हमारा जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है दैट इज अमाउंटेड टू ₹5 लाख, बिकॉज वो 5 लाख आपका कैपिटल है, नॉट द शेयर्स. ओके, सो 5 लाख हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड फर्दर वी हैव issued share capital of 20,000 equity shares at the rate of 10 each, which is amounted to 2 lakh rupees. Again with the double underline हम क्या करेंगे, इन्हें टोटल कर देंगे the authorized and this one. Now subscribed capital के लिए क्या करेंगे, subscribed capital कहाँ जाना चाहिए. अब आप खुद बताइए कि subscribed capital में उसने second call तो call किया ही नहीं, तो subscribed capital में everything will go to your not fully paid. राइट, सो नॉट फुली पेड अप में जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन. नॉट फुली पेड अप में कितना हो गया, कितने शेयर्स हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. रुपीज हाउ मच कॉल्ड अप, ₹3 का फाइनल कॉल नहीं किया तो 7 कॉल्ड अप. 7 कॉल्ड अप के साथ तो इनर कॉलम में कितना अमाउंट चला गया, सो इनर कॉलम में जाएगा आपका 1,40,000. अब इसमें से कॉल्स इन एरियर्स भी तो लेस करना है, सो लेस करेंगे आपका कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट. कॉल्स इन एरियर सिर्फ कितना है 300 ने तो एडवांस पे किया है, लेकिन 1,000 शेयर होल्डर्स ने आपका कॉल नहीं पे किया था ₹3 का. सो वी हैव अ कॉल्स इन एरियर्स अमाउंटेड टू ₹3,000 which will come out to 1,37,000. So our total called up capital, subscribed capital is 1,37,000, जो आपका कहाँ जाएगा शेयर कैपिटल में अंडर द बैलेंस शीट. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी. तो एप्लीकेशन का एंट्री क्या रहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं हमारे पास, कुछ नहीं बताया, सो अज्यूम करेंगे जितने शेयर्स इशू किए थे उतने ही क्या आ गए आपके पास एप्लीकेशंस आ गए. ₹2 का आपका एप्लीकेशन है, सो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000. नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू द फेस वैल्यू. तो यहाँ पे तो फेस वैल्यू कितना है आपका 40,000 ही है, ₹2 है तो 20,000 इंटू 2 40,000. नो कंफ्यूजन इन दिस एंट्री. नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, हम कॉल्ड अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू equity share capital account. And for this question we have the securities premium also. तो securities premium account, तो securities premium 20,000 के शेयर्स इशू हैं, ₹2 का आपका securities premium है, ₹3 की क्या है आपकी अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है. तो टोटल अलॉटमेंट इज ₹5. वी डिस्कस की क्वेश्चन में ₹10 मिस्टेकन प्रिंटेड है, तो दिस इज 1,60,000 एंड 40,000. रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ही सेड कि यहाँ तक कुछ भी आपका कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस नहीं है, ऑल द मनी ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड. नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, आप अपना फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account, no premium. So 20,000 shares into the ₹3 amount, 60,000. Next due करेंगे, next करेंगे receive करेंगे. Now this is the important entry that we have to cover here. यहाँ करते हैं इसको entry को with the amount. Okay. Bank account debit
वी नो दैट कि कुछ शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया था, तो कॉल्स इन एरियर्स आएगा। टू कौन सा अमाउंट रिसीव करना है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी थे जिन्होंने अपना सेकंड कॉल पे कर दिया, सो विल राइट डाउन कॉल्स इन एडवांस। और किसी को कॉल्स इन एडवांस अगर नहीं लिखना है, सो दे कैन राइट डाउन शेयर सेकंड कॉल, अपना चॉइस है। लेकिन जो भी होगा आपका, नेक्स्ट जब शेयर सेकंड कॉल का एंट्री करेंगे तो वहां पे इसका इफेक्ट जो है हमें शो करना पड़ेगा। वी हैव टू बी केयरफुल। शेयर फर्स्ट कॉल हमने चेक किया कि लास्ट एंट्री से कितना आना चाहिए, 60,000 आना चाहिए। लेकिन 1,000 शेयर होल्डर्स ने पे करने से आपका अमाउंट क्या कर दिया, देखो 1,000 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल देने से मना कर दिया था, और फर्स्ट कॉल कितनी है, 3 रुपीज की, तो नहीं पे किया। और जो 300 शेयर होल्डर्स हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल भी कितने की है आपकी, 3 रुपीज की, तो 900 रुपीज उन्होंने एडवांस में पे कर दिया। सो टोटल अमाउंट वो कह रहा है 3,000 के कॉल्स इन एरियर्स हो गए और 900 क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। तो जो बैलेंसिंग फिगर है 60,000 प्लस 900, जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आया, माइनस करेंगे उसमें से आपका 3,000 जो आपके कॉल्स इन एरियर्स हैं, तो 57,900 जो है हमारा क्या हो गया, बैंक अकाउंट रिसीव। ये आपको जर्नल एंट्रीज में भी आ सकता है समटाइम्स। ही में आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू इन एमसीक्यू आल्सो, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल नहीं किया है इसलिए सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करेंगे। ओके, now let's come to the next question, question number 12. Global Sales Limited issued 250,000 equity shares at the rate of 10 each for public at par for subscription, amount being payable as application money past the necessary journal entries in the books. देखिए सिंपल क्वेश्चन है, at par किया है, नो प्रीमियम, एंड ऑल द मनी इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी सारा पैसा किस पे पेबल है, आपका एप्लीकेशन पे। तो इस केस में हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, फर्स्ट एंट्री तो वैसे ही होगा, सिंपली आपका बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले स्टेज में हमेशा क्या होता है, आपका पैसा रिसीव होता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, विल राइट डाउन टू, इक्विटी बोला है, यस बोला है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एक एक्स्ट्रा है कि अगर हमारे पास अलॉटमेंट स्टेज डिफरेंट नहीं है एंड ऑल द अमाउंट इज पेबल ऑन द एप्लीकेशन, तो हम सारा अमाउंट यही लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स इशू हुए हैं, 250,000 शेयर्स एंड एट द रेट ऑफ 10 ईच, सब कुछ एक ही पे पेबल है। 250,000 इंटू 10, इट विल बी 25 लाख इन बोथ द कॉलम्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, सिंपली आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कॉपी करेंगे ऊपर से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके यहाँ पे मार्क डिडक्ट होंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस विल अमाउंट टू, अगेन आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 लाख। I hope this is clear to everyone. Equity share application and allotment account debit to equity share capital account. Question number 12. Okay, let's move on to the next part. Question number 13 from T.S. Garewal. The authorized capital of 16 lakh, कितना है, 16 lakh is the authorized capital, rupees दिया है, Bharat is divided into 1,60,000 equity shares of 10 each. Out of these 80,000 shares were issued at par. तो हमारी issued capital कितनी हो गई, 8 लाख, और authorized capital कितना हो गया, 16 लाख. Full nominal value is payable on application, सारा application पे payable है, यानी entry कैसे हो गई, application and allotment. All the shares were subscribed by the public and total amount was paid. जितना subscribe किया उतना पे कर दिया, total amount paid. Pass the necessary journal entries in the books of the accounts. Okay, necessary journal entries करनी है. Simple question. No account notes to accounts to be made. First entry क्या होगी आपका, bank account debit to equity is written. Yes, equity written है तो equity लिखना नहीं भूलना है. Equity share application and अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना इशू किया है, 80,000 शेयर्स एट पार है, सिंपली 80,000 इंटू 10, 8 लाख ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा आपका, सेम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
and allotment account debit to equity share capital account amounted to rupees 8 lakhs, right? Okay, so we are done with the question number 13 itna hi hai hamara. Okay, let's move on to next question number 14. What says? Ashok Leather Limited invited application for 10,000 shares of 100 each, payable as follows: 30 on application, 30 on allotment, 20 on first call, balance on first and final. Question में कहीं पे भी securities premium नहीं है, that means issue price equal to face value 100 ही रहेगा. 30 on application, 30 on allotment, 20, 30, 30, 60, 60 plus 20, 80, 80 और आपका final call हो गया again 20 rupees, 100. All the shares were applied and allotted. Fully subscription. All the money was duly received. No calls in arrears. You are required to journalize these entries and show the house share capital in the balance sheet. Let's start with the journal entries. First entry stage wise करना है. You are required to do the journal entries and show how the share capital in the balance sheet. So आपको क्या करना है? Balance sheet भी prepare करना है और journalize भी करना है. All the shares were applied. Fully subscription है. All the money was duly received. Just stage wise आप entries करेंगे. Bank account debit, our first entry to शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखना है, बिकॉज क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज डिफरेंट है, तो एक ही स्टेज पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं होगा. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स इशूड थे, वही आपके सब्सक्राइब भी हुए हैं इनटू द 30 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन. सो 3 लाख विल बी इन द फर्स्ट एंट्री. नेक्स्ट, being the share application money received, next entry करेंगे. Equity share, there is no mention in the question कि equity shares हैं या नहीं, तो आप skip कर सकते हैं इस question में. Only we have to write down share. Share application account debit to share capital account, being all the money transferred to share capital account. So 3 lakh rupees, because issued is multiply by the face value. इस question में प्रीमियम है ही नहीं है. नेक्स्ट ड्यू करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू, अलॉटमेंट का अमाउंट भी कितना है आपका 3 लाख. सो 3 लाख रुपीज, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. नेक्स्ट एंट्री करेंगे रिसीव करने का अलॉटमेंट पे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फुली ड्यूली रिसीव है, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, तो जितना भी ड्यू किया अमाउंट वो कंप्लीट क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेज ड्यू करेंगे विच इज आवर फर्स्ट कॉल. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,000 इंटू 20 रुपीज अमाउंट है विद नो सिक्योरिटीज प्रीमियम. 10,000 into 20, so it will be 2 lakh debit, 2 lakh credit. Next, same amount receive करेंगे. Bank account debit, no calls in arrears, so bank account debit to share first call amounted to 2 lakh rupees in both debit and credit. Final call due करेंगे. Second call जो है हमारा share final call account debit to share capital account 30, 60. We have calculated कि कितना आएगा 20 रुपीज, तो 2 लाख ड्यू करेंगे. एंड सेम सिमिलरली 2 लाख रुपीज ही क्या होगा आपका? रिसीव भी होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल call account 2 lakh, both debit and credit. So these are the journal entries which are required in the question. Now we are going to prepare the share capital given in the balance sheet. जो हमें prepare करना है 10,000 shares at the rate of 100 each. Question में authorized capital भी नहीं है और आपका issued share capital भी नहीं है. So this particular type of questions जहां पे आपका authorized capital नहीं दिया होता और issued capital नहीं दिया, आप क्या कर सकते हैं? या तो आप skip कर दीजिए, authorized और issued capital लिखे ही मत, और आप इसी तरीके से बना करके यहाँ पे डबल अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए विदाउट फिलिंग द अमाउंट्स. ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल. सब्सक्राइब नॉट फुली पेड नहीं जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि all the shares are fully paid and fully subscribed. So 10,000 equity shares at the rate of 100 each. 10 lakh rupees जो है
उसका subscribed capital होगा, and same amount will be shown in the balance sheet of the company under the head share capital. So this is how we will be writing share capital, 10 lakh rupees. For next questions, please stay tuned to the channel. Thank you so much.